Good morning, dear student. Myself, Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. Today we will discuss the next topic of unit number 1, that is types of DC voltmeter, chopper type and solid state type. As we have discussed in our previous lecture, the basic design of DC voltmeter. The DC voltmeter consists of a PMMC type instrument with a series resistance Rs. The voltmeter is always connected in parallel with the voltage supply. So it is a basic design of DC voltmeter. But sometimes we need some specific type of voltmeters for a special application. So some special types of DC voltmeters are, first is chopper type DC voltmeter and the other is solid state type DC voltmeter. We will discuss it one by one in detail. So first one is chopper type DC voltmeter. The chopper type DC voltmeter is used in highly sensitive DC electronic voltmeter. In this, DC input voltage is converted into an AC voltage, amplified by an AC amplifier, and then converted back into a DC voltage proportional to the original input voltage. The basic voltmeter has some limitation caused by drift problems in DC amplifier. Any fluctuation of voltage supply or variation in the characteristic due to aging or rise in the temperature causes a change in the balance condition or the zero setting condition of the amplifier. This drift in the steady state condition of a DC amplifier causes the output indications to change as if the signal input had changed. This drift problem limits the minimum voltage that can be measured. So, to measure small voltages, a chopper type DC amplifier is used. And this chopper type DC voltmeter is basically designed on the concept of chopper type DC amplifier. A chopper amplifier is normally used for the first stage of amplification in very sensitive instruments of a few microvolt range. In such an amplifier, the DC voltage is chopped to a low frequency of 100 to 300 Hz. It is passed through a blocking capacitor, amplified and then passed through another blocking capacitor in order to remove the DC drift or offset of the amplified signal. As we can see from the slide also, chopper type DC amplifier is used in highly sensitive DC electronic voltmeter. DC input voltage is converted into an AC voltage by chopper modulator. The input signal is very low level signal. This AC signal is amplified by an AC amplifier and then converted into again DC signal by using chopper demodulator. So this is the basic principle of operation of chopper type DC voltmeter. Modulator chopper and demodulator chopper act in एंटी सिंक्रोनिज्म, यानी कि दोनों में जो मेथड होगा वो जस्ट अपोजिट रहेगा. चॉपर सिस्टम में भी either मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक. नेक्स्ट स्लाइड shows the circuit diagram of chopper type DC voltmeter. The circuit use photodiodes. As we can see from the slide, there are two photodiodes. The photodiode change its resistance under different illumination conditions. जैसे कि हमें पता है फोटोडायोड कैसे काम करता है. व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड? जब उस पर लाइट रेज आएंगी तो वहाँ से उसमें से जो यहाँ फोटोडायोड लगा होगा जिस सर्किट में, उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो जब तक वहाँ पे एल्यूमिनेशन नहीं है या फिर वहाँ पे लाइट नहीं है तब तक वहाँ पे कोई करंट नहीं रहेगा. जैसे ही वहाँ पे लाइट आएगी द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. सो दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड इन चॉपर टाइप DC वोल्टमीटर. पहले उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा जब तक उस पर लाइट रेज नहीं आ रही है, और जैसे ही लाइट आना शुरू हो जाएगी उसके बाद फोटोडायोड का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. सो द रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड कैन बी चेंज फ्रॉम few mega ohm to the few
सिंपल 100 ओम्स, यानी कि मेगा ओम से लेके उसकी रेंज कहाँ पे आ जाएगी 100 ओम्स में, यानी कि बहुत कम हो जाएगी उसकी वैल्यू जब हम वहाँ पर लाइट इफेक्ट बढ़ाएंगे या जब वहाँ पे इल्यूमिनेशन बढ़ेगा. सो द चॉपर टाइप DC voltmeter works on the concept of photodiode. The resistance of photodiode change with the illumination. So it will increase or it can decrease depending upon the intensity of light. The next slide shows point-wise working of this circuit diagram. There are two neon lamps that are used in the circuit. Each neon lamp illuminate one photodiode in the input circuit of the amplifier and one in the output circuit of the amplifier, as we can see from the diagram. The two photodiodes form a series shunt half wave modulator or chopper. When one photodiode or the input has maximum resistance, the other has minimum resistance. The same condition exists at the output circuit also. So, together they act like a switch across the input to the amplifier, alternatively opening and closing at a rate determined by the frequency of neon oscillator. जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की होगी उस फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन द ऑसिलेशंस. The oscillator frequency is limited to a few hundred cycles because the transition time required for the photodiode to change from high resistance to low resistance will limit the chopping range. तो यहाँ पर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स करके चॉपिंग को भी फिक्स कर सकते हैं, कितने वोल्टेज तक हम चॉप कर सकते हैं. The next diagram shows the basic principle of this amplifier with the help of the working of photodiode. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं there is a photo device और photodiode connected in the circuit. जब यहाँ पर लाइट आएगी तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, करंट फ्लो बढ़ जाएगा एंड द आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज. और यहाँ पर जब वहाँ लाइट कम रहेगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और एंड द आउटपुट विल डिक्रीज. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ photodiode and the output waveform for the particular circuit. Here we shows a photo device or a flashing light source whose intensity varies from maximum to minimum. That causes the photodiode resistance to changes from minimum to maximum quickly. Therefore, the output voltage is an AC. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटोडायोड की जो चेंजेस हो रहे हैं, जो उसमें रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आउटपुट चेंज होगा एंड द आउटपुट वेवफॉर्म विल बी एन AC वेवफॉर्म. सो द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सर्किट विल बी AC type output. The output of chopper modulator is a square wave voltage. This square wave is applied to the AC amplifier through a capacitor. जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इनपुट साइड में और एक आउटपुट साइड में. The amplifier output is again passed through a capacitor and then fed to the chopper demodulator. कैपेसिटर का काम क्या होता है यहाँ पर? कैपेसिटर इज यूज टू रिमूव द DC ड्रिफ्ट फ्रॉम द सिग्नल. बेसिकली कैपेसिटर क्या करता है? DC को ब्लॉक करेगा और AC को पास करेगा. तो यहाँ पर अगर उसमें कोई DC वैल्यू है तो वो DC वैल्यू को ब्लॉक कर देगा वहाँ पर. नाउ द चॉपर demodulator gives a DC output voltage which is passed through the low pass filter to remove any residual AC component. अब इसके बाद जो डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है रिसीवर पर, उसका काम क्या है? वहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए DC आउटपुट. सो दिस इज पास थ्रू द लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर से पास करेगा इस आउटपुट को. लास्ट में देखिए आप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देयर इज अ लो पास फिल्टर. चॉपर डीमॉड्यूलेटर से जो भी हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल पास थ्रू द low pass filter. Low pass filter will remove the AC component of the signal and the DC output will be obtained at the side, receiver side. Here two photodiodes are used in input state
विच एक्ट एज अ हाफ वेव मॉड्यूलेटर्स। यहाँ से जो हमें डीसी आउटपुट मिला है लो पास फिल्टर से, नाउ दिस डीसी आउटपुट वोल्टेज इज सप्लाइड टू द PMMC मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज। यानी बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने लो लेवल डीसी इनपुट लिया, उस लो लेवल डीसी इनपुट को हमने एसी में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग चॉपर मॉड्यूलेटर। उसके बाद उस चॉपर मॉड्यूलेटर के स्विचिंग हमने कैसे डिसाइड की, या चॉपिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने वहाँ पे यूज़ किया एक ऑसिलेटर और फोटो डिवाइस यानी कि फोटो डायोड। उन फोटो डायोड की जो स्विचिंग होगी या जो उसमें करंट की जो कंडीशंस होगी हाई या लो, उसके हिसाब से चॉपिंग होगी। वहाँ पर जो हमें सिग्नल मिलेगा चॉपिंग के बाद वो कैसा रहेगा, इट विल बी एन AC सिग्नल और इट इज़ एन अल्टरनेटिंग सिग्नल। इस सिग्नल को हम कहाँ देंगे, AC एम्पलीफायर में, यानी कि चॉपर मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा, AC एम्पलीफायर में। नाउ द AC एम्पलीफायर विल गिव दिस वैल्यू टू द चॉपर डीमॉड्यूलेटर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, एक एम्पलीफायर के पहले और एक एम्पलीफायर के बाद। पहला वाला कैपेसिटर DC ड्रिफ्ट को रिमूव करेगा और दूसरा कैपेसिटर भी DC को ब्लॉक करके AC को पास करेगा। नाउ द चॉपर डीमॉड्यूलेटर विल कन्वर्ट द AC वैल्यू इनटू DC वैल्यू। नाउ अगर इसके बाद अभी भी इसमें कोई AC कंपोनेंट रहता है, सो लो पास फिल्टर विल रिमूव द AC कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, DC आउटपुट। और इस DC आउटपुट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, टू द PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमने सिंपल वोल्टमीटर में देखा था कि उसमें जो इनपुट आता है वो DC इनपुट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है, दिस विल बी सर्व एज एन इनपुट टू द PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो वोल्टमीटर है किस पे काम करता है, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ चॉपर टाइप DC एम्पलीफायर। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज़ होंगे, एक होगा चॉपर टाइप DC एम्पलीफायर का कंसेप्ट और दूसरा एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पर फोटो डायोड्स का। सो दिस इज चॉपर टाइप DC वोल्टमीटर। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ चॉपर टाइप DC वोल्टमीटर। द फर्स्ट एंड the most advantage we can say that the chopper eliminate the need for a high gain DC amplifier with its inherent drift and stability problems। जो हमारा सिंपल DC एम्पलीफायर होगा जिसमें ये बहुत ड्रिफ्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है और स्टेबिलिटी इश्यूज भी रहते हैं, उन दोनों इश्यूज़ को यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग चॉपर टाइप एम्पलीफायर। The input impedance of a chopper amplifier is usually of the order of 10 mega ohm or higher। यहाँ पे जो इनपुट इम्पिडेंस रहेगा इसका बहुत हाई रहेगा। और जैसे कि हम पहले भी आपने पढ़ा होगा कि एम्पलीफायर अगर है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड एम्पलीफायर दैट इट्स इनपुट इम्पिडेंस शुड बी वेरी हाई, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ गुड एम्पलीफायर। Next advantage is the drift in an ordinary DC amplifier is of the order of millivolt। यानी कि यहाँ पर जो ड्रिफ्ट है इसमें बहुत कम ड्रिफ्ट होगा मिली वोल्ट की रेंज में। द फुल स्केल रेंज ऑफ एन ऑर्डिनरी DC एम्पलीफायर इज़ लिमिटेड टू मेजरिंग इनपुट सिग्नल ऑफ 1 to 100 मिली वोल्ट। यानी कि हम जो सिंपल DC एम्पलीफायर यूज़ करते हैं उसकी फुल स्केल रेंज क्या रहेगी, हाई रेंज पे काम करेगा, यानी कि 1 से लेकर 100 मिली वोल्ट तक। बट इन अ चॉपर मॉड्यूलेटर सिस्टम विद द यूज़ ऑफ AC एम्पलीफायर, drift can be cut down by a factor of 100, so allowing an input signal range of about 0.01 millivolt or we can say 10 microvolt full scale that has to be handled. So this drift problem has been removed in chopper type DC voltmeter. So it's all about chopper type DC voltmeter. Now next circuit is solid state type DC voltmeter. Solid state voltmeter is designed using semiconductor devices like operational amplifier, transistor and diodes। अभी आप लोगों ने op-amp नहीं पढ़ा हुआ है, but for introduction only, op-amp is a directly coupled very high gain amplifier. The gain of the operational amplifier can be adjusted to any suitable lower value by providing appropriate resistance between its output terminal। बेसिकली इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हमें इसका गेन कम करना है
So we can use or we can provide a resistance between its output terminal. And one more thing is there, output यहाँ पे जो भी हम आउटपुट देंगे वो वापस से इनपुट में आएगा. दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक. और यहाँ पर हम नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट ले रहे हैं वापस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक. So negative feedback is provided using inverting terminal of operational amplifier. The ratio R2 upon R1 determine the gain of the operational amplifier. R2 upon R1. ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक है. दिस इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि यहाँ पर हमें आउटपुट देखिए आप, यहाँ पे पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 दिख रही है आपको, और एक सिंबल दिख रहा है ट्राइंगुलर फॉर्म में. दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ऑप-एम्प बोला जाता है इसको. पिन नंबर 2 इज इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3 इज ए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5 इज द ऑफसेट नल इनपुट, एंड पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 7 इज द सप्लाई. 4 पे हमने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिया है और पिन नंबर 7 पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है. अब यहाँ पर जो भी हम आउटपुट देंगे वो वापस से इनपुट में कनेक्ट हो रहा है. यू कैन सी जो पिन नंबर 6 से हमें आउटपुट मिल रहा था वो वापस से कहाँ पे आ रहा है, पिन नंबर 2 पे. सो दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक. इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है. ऑप-एम्प इज हाई गेन एम्पलीफायर. और इस यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया है. सो द गेन ऑफ इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इज R2 upon R1, where R2 is the feedback resistance and R1 is the resistance connected here. We can also say input resistance. So it is the basic concept of operational amplifier. So the ratio R2 upon R1 it determines the gain of an amplifier circuit. तो यहाँ पर भी इसका गेन कहाँ से मिलेगा हमें, R2 upon R1 से. There are 2 diodes are used for IC protection. यहाँ पर देखिए आप 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि हम क्या कह सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द आईसी फ्रॉम द हाई करंट. अगर यहाँ पर हाई करंट फ्लो होगा सो डायोड कैन प्रोटेक्ट द आईसी बाय रिवर्स बाइसिंग और बाय कट ऑफ द सर्किट फ्रॉम द आईसी. सो दीज आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज. तो आप सर्किट देखो, यहाँ पर सर्किट में यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है. वन इज़ वोल्टेज डिवाइडर. यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर में जिस वोल्टेज को हमें मेजर करना है, जिस डीसी वोल्टेज को हमें मेजर करना है, दैट हैज़ टू बी गिवन एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इन्वर्टिंग पे हमने फीडबैक दिया हुआ है. और ये पूरा बाकी का सर्किट क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसकी रेंज देखिए आप, 10 मिली वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक का वोल्टेज हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो वोल्टेज डिवाइडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जिससे कि हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं और डिफरेंट रेंज तक हम, यानी कि 10 मिली वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक के रेंज के बीच के सभी वोल्टेजेस को हम मेजर कर सकते हैं. सो इट इज़ द सॉलिड स्टेट डीसी वोल्ट मीटर. इफ़ एन एक्सेसिव वोल्टेज, if more than 100 millivolt appears across them, then depending upon the polarity of the voltage, one of the diode conducts and protect the IC. यानी कि अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यानी ज़्यादा वहाँ पर लार्ज करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर एक डायोड कंडक्ट करेगा जो कि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और पूरा का पूरा करंट वहाँ से फ्लो हो जाएगा एंड द IC विल बी प्रोटेक्टेड. अ माइक्रो एम्पेयर स्केल ऑफ 52,000 microampere full scale deflection can be used as an indicator. ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पर हम जो स्केल यूज़ करेंगे वो 50 से लेके 1000 माइक्रो एम्पियर को लेके चल रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए. एंड R4 इज यूज टू एडजस्ट. R4 देखिए यहाँ पे लगा हुआ है. R4 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. दिस इज एडजस्टेड टू गेट मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन. R4 की वैल्यू को हम सेट करके फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट डीसी वोल्ट मीटर. थैंक यू. दिस ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट टाइप डीसी वोल्ट मीटर एंड चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर.